Hello everyone, welcome to the session. In this session, we have with us Mr. Sagar. So Sagar has got All India rank 664 in Civil Service Examination 2024, and he has management optional as his background, and he has scored one of the wonderful marks in management optional for this year, that is 266 marks. This score happens to be one of the very good score considering the overall performance of all the optionals this year, where any performance above 260 is considered to be very good performance. So the purpose of this session is to, first of all, we will interact with Sagar for understanding his journey of UPSC, his background and everything. And then we will primarily focus on how to score high in the management optional, how he has scored, what problems he faced, how did he, reach at this score. So the ultimate purpose is to focus on the management optional. So welcome Sagar, and congratulations on your success this year. Thank you, sir. Thank you. I'm audible, right, sir? Yes, Sagar, you're audible. So Sagar, I will request you to, can you please introduce yourself? Sure, sir. Sir, first of all, I would like to share my warm thank you and gratitude a lot because of your guidance also through my preparation and also otherwise in terms of mental and moral support that you've given me over the years, plus also providing me a platform to interact with the other aspiring candidates here, and whatever little I can contribute to their journey and my experience, it's an honor for me also to present my journey to you. First of all, so my heartfelt thank you for that. And in terms of my journey, so I come from Jaipur, Rajasthan. I have done my engineering from NIT Trichy in computer science, and then after that I joined IIM Ahmedabad where I did my MBA. And since then, post that I worked in Mumbai as an investment banker for almost 4.5 or 5 years. And then there was always this idea of joining public service and being part of a larger role and where I could contribute more to what the society could offer, and I can also contribute to it a lot. And also a lot of it has to come from my father, who is also in service in railways. So that idea and thought was always there at the back of my mind. And then in the later phase of my career as an investment banker, I thought, let me take a jump into the civil services journey and let's see what I can do there, and can I do something over there. So that was the thought of me entering into civil services preparation journey. And that journey started slightly before COVID hit us. So it has been a long and arduous journey, but not a very sad journey, I would say. There were a lot of ups and downs, but it was quite interesting also because you get to learn a lot, you get to mature also as a person. So I started in 2020 where I gave my first pre when the COVID just hit, and then there were a lot of changes also in the schedule of prelims exam, and there was a lot of confusion when to and how to study. So that was when I actually got into the cycle, and I started preparing for everything. And management was a very de facto choice for me because I had done my MBA, and a lot of it was very simpler in terms of the choice that why should I go for management, as in this is something that I have also been doing as an investment banker, where the finances and the accounting portions were clear to me in terms of general international business or the market. Otherwise you are an engineer. Otherwise you are an engineer by like graduation, right? Yes, sir. I am a computer engineer. Yes, sir. Right. But yes, please. So I was saying, so I entered the cycle in 2020. The thing is, I filled my form in February, and I actually started preparing in January. I got into the prelim cycle, so I did not have a time to think about what optional to take, because management was obviously my mother subject, and I was also working into finance, so it came naturally to me. And then I stuck with management because a lot of things. I'm sure we will talk about it in detail later on. But management as a subject has been unfair also, but very fair also in lot of terms. And if you love the subject, it will love you back. This is all in short, a message to all the aspiring other candidates as well. Right. So in a very good point that sometimes you feel it is unfair, sometimes you feel it is fair enough. Yes, sir. So initial thought which comes to the mind of aspirants is that it is too large a subject. So how did you manage that thought? Right, sir.
Sir, first and foremost, what I or the mental part or what I thought about the entire cycle is that I cannot complain about the vastness and the depth of any subject, because civil services as such is something that you have to get into it, and where even GS and everything is very vast and depth, with something which has very lot of depth. And to be very honest, when I also picked up management, I saw the module and those were the things which we have always learned in our MBA schools. But then the depth of it, you never realize it unless you get into the waters. And later on, when you get into it, then only you realize probably, okay, it was slightly a lot of quite depth is there, and then there is a lot of things that I need to study, and then there are standard books that I have to follow. But then those are the things that you unravel more as you prepare. And the idea is also that if you study more, then you get benefit also out of it. The thing is, you cannot choose an optional, and this is what my limited understanding has also been by seeing my other fellow candidates and my friends who were taking, let's say, sociology optional or anthropology or any other optional. Hmm. If you have to do good in any subject, you have to study a lot. And you cannot talk about, okay, management has slightly more to study than the other optional, let's say. But if you have to take the extra nudge and take the extra marks out of it, you always have to give extra. So, and the whole idea is that yes, management could seem very vast, but then if you go through a timeline and structured process, it will serve you well. And also the major benefit that I feel from management is that it is quite static in a way where a lot of things don't move across the years, so you can fairly predict what kind of questions and what how to prepare for it, and then which is something which is very consistent, and that really gives you an extra support also over your years, where you have, let's say, you are attending for the second or the third time, so management will give you the base where it will not betray you as much. Right. Very correct point. Like if you have some background in the management, then definitely it is going to be your comfort zone. At least you can save some time, and it is very predictable because the questions which we find very simple question come, and easy to manage, no unpredictability. For example, in paper one also, only we see a lot of theories repeating, management theories, leadership theories. In paper two, a lot of questions repeating. So definitely, if you cover it properly, the things are manageable. And yeah, one should have some background in the management. That is something which is required in this optional. Fine. Right. Yes. So Sagar, how will you describe your preparation of the optional? I mean, Okay. the resources and the further approach. Right, sir. Sir, I'll start from the beginning, and I think it's better if we go module by module, where I can slightly talk Hmm. also what was my belief and idea. And I'm sure, so in the beginning, everybody maybe probably starts with paper one, and where I think most of us either starts with OB, organizational behavior, or we start with marketing management. I think because marketing is something that we all maybe have learned in our MBA schools, or something which might come very naturally to us. So I also started with marketing management, and Philip Kotler is what we all study. So, so before I get into the module part, I feel what has been my way of studying, and the way I follow anything is that I give a lot, as in I open the standard books, I go through the book slightly in detail in the beginning to prepare a conceptual understanding of what the subject is and how things are moving. So it might be that for initially in my first reading, for each maybe 600 page book, I've read 400 pages out of it, and that I've done for most of the modules, even for the accounting and the finance one, because I think that is where, if you first, you start fearing a subject only if you have not got into the conceptual clarity of it. And let's say The basics part, the overall context. right, Right. sir. Right. And you cannot just study, let's say, zero-based budgeting, the one pager out of it, and prepare understanding out of it. You have to learn 20 pages of it, so that you learn the story out of it and what it serves and how it serves. Then only you will have a base on it. And later on, it becomes very easy over the years. That is where the frustration also comes out of, where people, let's say, have not gone into the depth and the detail of the book, and then you have just gone through the topic, and maybe you do not feel the connect with the subject as much. Now getting back to the module by, and in slightly more granularity, I went to Kotler, and then I learned all those
obviously you will not have to read all the chapters, but then whatever is mentioned, your syllabus is your key. It is a bible. You open it, you see what chapters are there, you study it thoroughly. The idea where every topper says 2-3 pager note is really the core of it. You have to really make those 2-3 pages your own handwriting, your own notes, rather serve you well, where the eidetic memory you get out of seeing your own handwriting, and then you remember it faster there. And then when you spend the effort, then only you have the better understanding of it. So for management marketing, I did Kotler, and whenever I would do any module, I would also go back to the PYQs for last 10 years, which again we will talk about in detail how to do PYQ. But you cannot just study blindly, because it is not a subject. It is not like you are not doing an MBA. You have to prepare for UPSC, where certain kind of questions are generally getting asked from management, and they are not theoretical but also practical, application based. So you go to the content, and then you see what question are asked from that particular topic, and then you prepare accordingly. Let's say pricing strategy. Now pricing strategy पे आप देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो. Let's say there is a business in milk marketing management है, तो how will you price this, or those kind of things. So you do not have to learn the theory of it. तो आपको वो भी समझना पड़ेगा कि आपको रटना कैसे है. How do you memorize it? Either do you have to memorize it or you have to apply it. तो आप prepare notes and then go to the PYQs for each topic that you've learned. Go through what questions are asked. So marketing management, I think it is slightly fairly easy for everybody, where Kotler is the base, and then you prepare short note out of it and try to learn a lot from it. And I'll be honest also, there have been certain toppers or certain past selected candidates whose online notes are also available, where they have also crisply followed the same strategy. And it is actually very smart of us to rather follow what the selected people have done, and if they have given their chunks of brilliance out there in the online world, where you can get them and then also go through your notes and see if you have left out on anything and whether those selected candidates have done more. So for that, Pankaj Yadav sir note I referred, and then Bhavya Verma sir note I also referred. Those were the notes where I would prepare my notes and see what is missing in my notes, and whether what have they done differently, or use the chart or any example out of them. So marketing management के लिए Kotler will 100% suffice, and rather Kotler is a lot. Do not do Kotler page out completely, but do that. Then I think we have to get down into managerial function and process and organizational behavior module. So managerial functional is the second one that I did, and for that you have to understand कि this is the core of management theory. यहीं से management start हुआ है कि the evolution of management theories कैसे हुआ है, तो वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा वो study. और उसके लिए मैंने किताब उठाई, डिसेंजो की किताब थी वो, मैंने उसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया कि उससे management कैसे flow कर रहा है. So you learn about the classical school of thought, and then new classical, फिर behavioral क्या हुआ, तो वो सब पूरे मैंने वो बनाए. उनके I'm sure everybody is doing that, but preparing your handwritten notes on topic wise, and please we have to understand कि आप अगर आप समझेंगे नहीं और अगर आप बस memorize ही करते रहेंगे, तो you will lose the love also for the subject, plus also you will not be able to remember it as vividly in the exam, क्योंकि exam में आपको reproduce करना पड़ेगा, and the way you produce it better. Yes, notes बनाना बहुत जरूरी है. Right. और आपको अच्छे क्वालिटी के नोट्स बनाइए ताकि वो आप लिख भी पाए एग्जाम में अच्छे से. तो राइट, मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अच्छे से नोट्स बनाइए. जैसे कि हम तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को नोट्स बनवाते हैं, हैंड रिटन नोट्स बनवाते हैं, तो इफ यू आर अटेंडिंग क्लासेस दैट इज इनफ, बिकॉज वहां पे रिसर्च की है. लेकिन जैसे आपने तो सागर मोस्टली सेल्फ स्टडी से ही किया था, लाइक सेल्फ स्टडी ऑफ द मटेरियल एंड ऑल, और आपने नोट्स बनाए थे डेफिनेटली, तो दैट इज रिक्वायर्ड. हाँ जी सर, तो I was actually coming to that कि I'll tell my fellow candidates who are there on the line. Last year I gave an interview, but I couldn't clear it. So I met sir Rahul sir after interview, and then he motivated a lot. And I asked him, मेरा question ये था कि सर मेरे को 258 आए हैं, पेपर 1 में 143 I scored, पेपर 2 में I scored slightly lesser than 120. Sir, how should I increase it better and what should I do more? So he had a clear answer कि you give me the answer writing that you are doing. I need to know कि आपका standard क्या है. And on the side I picked up dynamic study material.
So after April, my interview, the result came out April last year. मैंने April के बाद and the prelims were in May 25 और it later got pushed to June. But मैंने उस 1.5 महीने में डायनेमिक के स्टडी मटेरियल पूरे पढ़ लिए थे. All the study material I studied 80%. तो उससे मेरे को You're very fast reader, Sagar. Really. Sir, it was my 4th attempt in my first interview, so I had to really pace it up, and I did not have any excuse to not study as much and take time out of it. Yes. Because I realized कि between pre and mains आपको बहुत you have to pace your study a lot and you have to run with the timeline. आप अगर पहला चीज अगर प्री मेंस के पीछे पढ़ेंगे तो आप थोड़ा you will suffer a lot and you are probably right. When we should not leave the preparation to the last moment. अभी तो लास्ट में 80 डेज मिलते हैं, तो 80 डेज में यू कैन नॉट रियली डू समथिंग वर्थवाइल. बस आप जो आपने पहले किया उतना ही मेंटेन करते हैं. जी आपका वो बेस अच्छा होना चाहिए. तो वो मैंने डायनामिक का आपका स्टडी मटेरियल जब लास्ट ईयर लिया था उससे मेरे को काफी कॉन्फिडेंस आया कि मेरे भी नोट्स अच्छे हैं और आपके मटेरियल से आई विल टेल फ्यू थिंग्स व्हिच वर्क फॉर मी. द एग्जांपल्स दैट यू गिव काफी सिंपलिस्टिक और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल होते हैं, वो मैंने आपके वहां से उठाए. एंड देन आई आल्सो इंक्रीज द डेप्थ ऑफ माय नॉलेज बेस कि कोई थ्योरी ऑफ लीडरशिप है तो उसमें और क्या पॉइंट्स ऐड किए जाएं एंड हाउ टू मोर प्रिपेयर फॉर इट. जैसे मिलर और मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट है, देयर आर 2-3 अदर, ओरेकलर मॉडल हो गया, तो वो सभी क्वेश्चंस आते रहते हैं. तो यू हैव टू सी कि आपके हिसाब से आपने जो नोट्स बनाए हैं लेकिन मार्केट में आप सर क्या पढ़ा रहे हैं, कोचिंग वाले क्या करवा रहे हैं और क्या क्या अच्छा कंटेंट है. यू ऑलवेज हैव टू, क्योंकि अंत में इन द एंड व्हाट वर्क्स इज दैट इफ यू गिव एनी एग्जांपल इन योर पॉइंट्स एंड इन ईच आंसर राइटिंग, विल कम टू आंसर राइटिंग आल्सो, बट इन ईच आंसर राइटिंग यू हैव टू गिव पॉइंट्स डिफरेंट डिमेंशन पे एंड यू हैव टू गिव एग्जांपल्स आल्सो ऑफ इट. अगर आप वो पहले से प्रिपेयर नहीं करेंगे, सोच के नहीं जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है, वो निकल नहीं पाएगा आपका. and that is where all of us and most of us, I also personally suffered in my first few attempts where I learned the basic. मैंने notes बना लिए थे standard books के, but when I was writing them in the paper, marks were still not as much. So I would then curse myself कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है. But then there was really those few nuggets of extra brilliance were needed, and your notes also helped a lot last year with me, for me on that. फाइन. मुझे बताइए कि लाइक जो हमारे डैडी में के नोट्स हैं, इफ अ स्टूडेंट गोस थ्रू देम, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड टू बी डन? बिकॉज़ अगर सपोज हमारे यहाँ पे क्लासेस कर रहे हैं, वैसे क्लासेस में तो वी ऐड लॉट ऑफ थिंग्स, बट सपोज कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू आवर नोट्स, इफ समथिंग? सर आई फील डायनामिक के जो आपके नोट्स है सर, दे आर वेरी गुड, बट दे आर स्टिल 200 पेजेस. राइट. मतलब कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के लिए इफ यू गो फॉर द ओरिजिनल टेक्स्ट, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. आई अंडरस्टैंड. करेक्ट. तो जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो सब 400 पेज पढ़े हैं, लेकिन वो 400 पेज का आप यू आर प्रेजेंटिंग इट इन 250 पेजेस एंड दोज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन सिंपलर लैंग्वेज वेयर एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. लेकिन उस 250 पेजेस को भी आई हैव टू गेट इट डाउन टू 100 पेजेस और 50 पेजेस इन माय ओन राइटिंग इन नोट्स. तो आपके योर नोट्स आर द फर्स्ट बेस वेयर पीपल कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप देयर नॉलेज बेस एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द ऑप्शनल देयर. तो आपके नोट्स सर काफी अच्छे हैं एंड आई थिंक कि they provide a very good base, to be honest. They work a lot, and obviously every year with new content coming in we have to keep them updating, new example and more example, but they are very nice. Right. वो मतलब ये कि सब्जेक्ट वाइज अगर किसी का कोई चीज वीक है तो दे कैन गो फॉर द एक्स्ट्रा बुक आल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज यूपीएससी एग्जाम. इट कैन नॉट बी लाइक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच कि मतलब सबके लिए सेम है. किसी के लिए कोई सब्जेक्ट वीक है तो दे हैव टू गो फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स. जी. So the other thing, correct. I'll be very quick on the module. I took a lot. We did not discuss it as much. But managerial function का I'll say कि उसमें theory of management और वो सब होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि हर साल उसी से क्वेश्चन आते हैं, एक दो तो आएंगे ही आएंगे. साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया या बिहेवियरल मॉडल हो गया या न्यू क्लासिकल कुछ भी है, वो आपका बेस ही वहीं से आता है. ओबीडी का बेस वहीं से आता है, पूरा ओबीडी का पूरा बेस ही वहां से आता है. जी वहीं से आता है और वो हर समय क्वेश्चन भी आएंगे और आपको जो जो टॉपिक है वो पूरे पढ़ के जाने पड़ेंगे. फ्लेक्सिबल सिस्टम मैनेजमेंट है, वो लेफ्ट आउट टॉपिक रह जाता है, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर क्योंकि क्वेश्चन आएगा, उससे आ सकता है. और बहुत ही प्रेडिक्टेबल, बार बार रिपीट होते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन रिपीट होता है. एग्जैक्टली. तो मैंने वही किया. तो फिर मैंने पंकज यादव सर के नोट्स जो है, जो कि इट इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन ऑफ डिसेंसी और जो पास्ट किताब जो हम सब पढ़ते हैं, बट आई ऑल्सो रेफर टू इट कि वो सर क्या लिखे हैं उन्होंने और व्हाट आर द थिंग्स दैट ही इज डूइंग. तो आई हैव टेकन क्यू ऑल्सो फ्रॉम दैट. Then we'll go to OBD. OBD is also very the core of paper 1 section A, and आपको बहुत अच्छे से करना है. And you have to get into the
the idea on management is that you cannot leave any topic, क्योंकि आप जो टॉपिक छोड़ के जाएंगे और वही टॉपिक क्वेश्चन में आता है. The Moore's law works perfectly. जो आप छोड़ेंगे वही आएगा एग्जाम में. तो मेरे साथ भी होता था कि मैं ये छोड़ देता था और वही आ जाता था, and then I was like, I have studied everything but this, but then the world is unfair to me. But that is not how world works. Yeah, something which is part of syllabus, you have to do it. जी. आपको नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज बेस्ड एंटरप्राइजेस, सबके बारे में आपको नोट्स होने चाहिए. एंड एवरीथिंग इज फेयरली इजी आल्सो, एंड इट इज ऑल थ्योरेटिकल. स्टीवन रॉबिन्स, आपके भी नोट्स काफी अच्छे हैं. डायडमी मटेरियल आई रेफर्ड. आपको बस हर समय किसी के भी एग्जांपल देखने पड़ेंगे. आपने नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन किया, यू हैव टू आंसर इट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में या फिर गवर्नमेंट के एंटरप्राइज में. वो हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलता है. हमें अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा. अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट समझा है तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर कुछ चीज न्यूज में आ रही है तो हमें कोई स्पेशल न्यूज नहीं पढ़नी है, बट वी जस्ट हैव टू बी कि हाँ अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन काफी यूज कर रही है. डेफिनेटली, मतलब बिकॉज यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बुक क्लोज और चैप्टर क्लोज, ऐसा नहीं हो सकता. एग्जैक्टली, क्योंकि जी सर, यूपीएससी में आपको सर वही, और वो आप बाद में नहीं कर पाओगे कि आपने पहले पूरे स्टैंडर्ड से नोट्स बना लिए एंड देन लेटर ऑन यू आर कीपिंग ऑन डूइंग द वैल्यू अपडेट एंड लेट्स से बिटवीन प्री मेंस आप कर रहे हैं. आपको पहले से ही, अगर आप मतलब आई आल्सो डिड इट इन द लेटर एंड की, इसलिए मेरे को इतने अटेम्प्ट भी लग गए, बट आई होप माय फेलो कैंडिडेट्स डू इट फास्टर. तो आप जब अपना फर्स्ट टाइम ही नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज मेक इट कंप्लीट, कि आपको पता है कि दिस इज द थ्योरी दैट यू हैव लर्न्ड, लेकिन उसको आप जब पेपर पे लिखोगे, ऑब्वियसली आप एक एग्जांपल भी देंगे, उसके साथ एक केस स्टडी भी देंगे. तो आप उसी टाइम आप इंटरनेट का यूज करें, चैट जीपीटी का यूज करें, गो टू ऑनलाइन सोर्सेज, लुक फॉर द आंसर्स देयर. But be precise, don't get diverted from the syllabus, because Correct. that is also a trap. कई बार हम चले जाते हैं. Never ever divert from the path that you have taken, which is your syllabus. अगर आप वहां से बढ़ गए तो आप को खींचने में काफी टाइम लग जाएगा. और जैसे आपने चैट जीपीटी का रेफरेंस दिया, सॉरी सागर, आई विल जस्ट से फ्यू वर्ड्स अबाउट चैट जीपीटी एज ए मेंटोर, कि चैट जीपीटी को हम लोग बेसिक कंटेंट के लिए यूज ना करें. वी कैन यूज ओनली फॉर वैल्यू एडिशन, बिकॉज बेसिक कंटेंट ऑथेंटिक बुक से होना चाहिए. जैसे आपने स्टडी मटेरियल के बारे में बताया, हमारा जो मटेरियल है पूरा ऑथेंटिक बुक से है, कंप्लीट ऑथेंटिक बुक से है. आप या तो ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए या तो ऑथेंटिक बुक्स के ऊपर बेस्ड मटेरियल पढ़िए. चैट जीपीटी को कभी भी बेसिक्स के लिए यूज मत कीजिए. आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट डोंट राइट द डेफिनेशन ऑफ चैट जीपीटी. बेटर इट इज कि आप बुक्स वाली जो डेफिनेशन है, बुक्स वाले जो पॉइंटर्स हैं, फीचर्स हैं, बुक्स वाले ही लिखें आप. तो चैट जीपीटी में ना इट बिकम्स वेरी जनरल लैंग्वेज, दे डोंट गिव मच ऑफ द क्रिटिकल वर्ड्स. और एग्जांपल्स भी यू हैव टू बी सिलेक्टिव, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई, क्योंकि मैंने बहुत सारे गलत एग्जांपल्स मैंने देखे हैं चैट जीपीटी में, गलत कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सबमिट किए. तो जस्ट एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स कि आप चैट जीपीटी यूज करें, बी वेरी कॉशियस. हमारी क्लासेस में तो आई टेक केयर कि ऑल द एग्जांपल्स आर ऑथेंटिक एंड अप्रोप्रिएट, बट इफ यू आर गोइंग फॉर सेल्फ देन यू बी केयरफुल. जी सर, 100% सर. I cannot emphasize more on what you have already said. ChatGPT can only be your last 5% का plugin. It cannot be your base of where you start from. तो आप be very concise on what you do also for ChatGPT, but be very open and intelligent about what you're doing with ChatGPT. फिर तो organization behavior हो गया आप, and then we'll come to PYQ also after that. But let me just quickly cover the modules. HRM के लिए सर अश्वथ थापा is really nice. तो आपको थोड़ा एक बार आप सारे बना भी लें, आपके जो जो टॉपिक वाइज हैं मैंने उनके नोट्स बनाए हैं. तो फॉर ईच टॉपिक जॉब प्लानिंग क्या होता है, HRIS क्या होता है, एंड it is a very fairly simple module where 90% things get repeated. और आप उसमें इन नए कॉन्टेक्स्ट में भी बनाइए कि स्टार्टअप में ये चल रहा है, नए एचआर क्या, आपको केस स्टडी जानने होंगे कि गूगल ये कर रहा है, तो नए फ्लेक्सिबल ग्लास डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी है, ये सब है. तो आपको वो सब लिखने पड़ेंगे और उसी से आप स्वीटनर डालते हैं एग्जाम में. बट इट इज अ फेयरली सिंपल मॉड्यूल. HRM वहां से हो जाएगा. नाउ Section A is done. Paper 1 का Section A is done. Now Section B. Section B has 3: accounting, financial management, and marketing management. Marketing management is already fairly simpler enough in terms of preparing. कि Kotler से हो गया and you are writing something. The other two modules, which according to me are very very critical nowadays, but also are tricky for the candidates. क्योंकि सर मैंने पर्सनली रियलाइज किया है कि last year I got 143 in paper 1, but that was because I did numericals, both the numerical. I chose 3 questions from paper section B,
and out of those 3 questions 2 were for numerical. न्यूमेरिकल प्रोसेस कोस्टिंग वाला एक तो था, हाँ सर. one was process costing and another was I think DuPont. हाँ sir. Hmm. My memory does not serve me that well right now. I remember. And this year also they are asking numerical questions in section B. Sir, but unfortunately I would say numericals have started getting tricky. पहले काफी थोड़े अच्छे और आसान होते थे, सिंपल होते थे. वो एक्चुअली मैं बताता हूँ, लेट मी टेल यू, बिकॉज ट्रिकी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में आए नहीं है. लाइक कॉमर्स ऑप्शनल में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर पीवाईक्यूज देखें तो नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग द कॉमर्स ऑप्शनल पीवाईक्यूज इन मैनेजमेंट. ओके, दैट इज यू नो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड. मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था क्लास में एंड आई फाउंड कि सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ गया मैनेजमेंट में. सो सोर्स ये है, मतलब आजकल जो बन रही है ना, दैट इज मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज आई एम लाइक टीचिंग फॉर बोथ एफएम साइमल्टेनियसली. तो मैंने ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चंस डेफिनेटली अगर सिर्फ ओनली मैनेजमेंट की हिस्ट्री देखेंगे तो डिफिकल्ट लगेंगे बिकॉज पास्ट में आई नहीं है. लेकिन वो सारी चीजों के ऊपर अगर आप हल्का सा एक्स्ट्रा चले जाएंगे तो इट इज वेरी रिवार्डिंग. जी सर, जी जी. तो उसी में सर मैं इन द सेम स्ट्रिंग ऑफ थॉट्स, दिस इज व्हाट हैपेंस विद अस व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग. हमको बताया जाता है एंड देन वी थिंक वी आर ऑफ दिस आइडिया कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजर से जनरली थ्योरी क्वेश्चन पूछते थे पहले 2015, 16, 17, 18, 19 तक, एंड देन दे वर फेयरली सिंपलर क्वेश्चन. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आते थे बट दे वर आल्सो काफी वेरी सिंपल. वैक वाले क्वेश्चन पूछ लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ लिया, कैपिटल बजटिंग वाले पूछ लिया. तो अभी बट इन लास्ट 2-3 इयर्स अकाउंटिंग फॉर मैनेजर से भी क्वेश्चन आने लगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो दैट इज व्हाई माय टर्म ऑफ ट्रिकी हैज कम. तो उसमें बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा. हाँ, ट्रिकी नहीं है, मतलब वो, हाँ आपने सही बोला कि प्रिपेयर करना पड़ेगा. पहले प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा. पहले हम लोग को पहले वी थॉट, आई पर्सनली स्टार्टेड व्हेन द जर्नी व्हेन थिंकिंग कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजर इज ए मोर थ्योरी मॉड्यूल, कि वो है लेकिन वो थ्योरी से हो जाएगा, जीरो बेस्ड बजटिंग आएगा. बट नाउ इट इज वेरी, आपको घुसना पड़ेगा उसमें थोड़ा. राइट, अब थ्योरी भी करनी पड़ेगी और न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा. प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल एब्सॉर्प्शन, स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा. And it is my humble request to all the fellow candidates, it might look tricky in the beginning, आपको लगेगा थोड़ा क्या चल रहा है, बट आपको प्लीज आप घुसिए बिकॉज इट इज वेरी रिवॉर्डिंग. एंड अगर आपने ये 2 मॉड्यूल अकाउंटिंग फॉर मैनेजर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छे से किए हैं तो आपका 145-150 इज ए वेरी रीचेबल टारगेट. वेरी गुड. आप बहुत सही बात आपने बोली है. पेपर 1 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, इट कैन नॉट हैपन विदाउट सेक्शन बी न्यूमेरिकल्स. हाँ, तो करेक्ट. आप इफ यू थिंक कि आपने, इफ यू थिंक ऑफ आवर टाइम स्पेंट ऑन पेपर 1, हम लोग सेक्शन ए में ओबीडी करने में, एमएफपी करने में, कोटल करने में वी स्पेंड सो मच नंबर ऑफ आवर्स, बट यहाँ पर हम लोग बहुत ही कम कर देते हैं. लेकिन अगर आप इसमें भी थोड़ा बढ़ा देंगे तो आपको बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा. एंड I generally, whenever I have done numericals from section B, then only I have scored good marks. I am not very good in theory, but तो वही मेरा humble request है. तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर के लिए मैंने किया था एमएन अरोड़ा किताब खरीदी मैंने, और मैंने उसको पढ़ा ढंग से कि क्या होता है, बिकॉज आई डिड सेल्फ स्टडी. तो आई ओपन द बुक एंड आई कंप्लीटली वेंट थ्रू चैप्टर्स, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, एंड रेड थ्रू स्टोरीज. तो मेरे को समझ में आ गया था कि अकाउंटिंग में हो क्या रहा है. तो देन सॉल्विंग न्यूमेरिकल इज समथिंग दैट यू पिक अप व्हाइल यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, एंड it was still tough for me, but ऐसे मैंने मैनेज किया था. एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी मैंने प्रसन्ना चंद्रा जो किताब है अपनी, वो स्टैंडर्ड बुक वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. प्लस पास्ट टॉपर भाव्य वर्मा सर के नोट्स हैं, वो काफ़ी एग्जॉस्टिव हैं, बहुत ज़्यादा है. लेकिन मैंने, इनफैक्ट सर मेरा बैकग्राउंड थोड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का था, तो मेरे को ये सब में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होती थी. हम लोग बैलेंस शीट, अकाउंटिंग और ये सब देखते ही रहते थे. तो ये था, राइट राइट जी. तो वो उसमें मेरे को कभी दिक्कत नहीं आ पाई. बट तो वही मेरा फेलो कैंडिडेट्स के लिए वही है कि पीवाई क्यों आप करें और आप न्यूमेरिकल इसमें बहुत प्रैक्टिस करते रहें, देखें, अलग अलग कॉन्सेप्ट से करें, क्योंकि इट विल सर्व यू डिस्प्रोपोर्शनेटली. राइट, मतलब या तो आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे होने चाहिए. अब जैसे हमारे पास तो हम क्लास में बहुत अच्छे से करवाते हैं. एफएम तो लाइक आई डू इट वेरी प्रॉपर्ली, न्यूमेरिकल थ्योरी एवरीथिंग वेरी गुड मैनर. मतलब अच्छे से करें जहां से भी करना है आपको, व्हाट एवर वे यू अडॉप्ट, बट यू हैव टू डू इट प्रॉपर्ली. और आप छोड़े मत, कोई भी टॉपिक मत छोड़ें. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, जिस साल आप छोड़ेंगे उसी साल आएगा. तो कुछ मत छोड़ें. तो दिस इज हाउ पेपर 1 वाज टैकल्ड. एंड पेपर 1 में आई वुड से कि अगर आप फेयरली अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, 145 to 150 इज अचीवेबल. ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, हो जाता है.
Then I think, sir, quickly coming to paper 2, quantitative technique in decision making, जो statistics का अपना module है, वहाँ से I think so. And paper 2 का भी पूरा, I think paper 2 is slightly easier than paper 1. मतलब I might be very wrong to say this, and I should not say this maybe, but I feel paper 2 is much more application based, and it is much more it comes थोड़ा short भी है comparatively, means in terms of coverage. जी सर, और पेपर 2 में थोड़ा मजा भी आता था मेरे को पढ़ने में, एंड इट केम नेचुरली वैसा। तो बट माय अगेन रिक्वेस्ट इन द सेम स्ट्रिंग ऑफ थॉट्स, आपको अगर 300 स्कोर करना है इस सब्जेक्ट में, विच इज नॉट ए टॉल टास्क, और इवन लेट्स से हम्बल 280, आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक पूरा मास्टर करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं अपने, और नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं, पी टेस्टिंग क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, काई स्क्वायर है, आप कुछ ही मत छोड़ें, टू वे अनोवा भी करके जाएं, लीनियर प्रोग्रामिंग का सिंप्लेक्स मेथड भी करके जाएं। सर आज से वो, आई थिंक इन द अटेम्प्ट बिफोर दिस एक क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन सिंप्लेक्स टेक्निक पे, मैं पूरे स्टैटिस्टिक्स में मैं सब कुछ पढ़ के गया था, बस सिंप्लेक्स छोड़ के गया था, और वही सिंप्लेक्स आया उस दिन। तो आई वाज कर्सिंग माई सेल्फ कि व्हाई डिड आई डू दिस टू माई सेल्फ। और जब आपके साथ क्या होता है, इफ यू डू नॉट नो एनी 10 नंबर क्वेश्चन इन द स्ट्रिंग ऑफ 50 वाला जो सेट होता है, यू हैव टू इनएविटेबली लीव दैट 50 वाला क्वेश्चन एंड जंप टू द अदर वन। तो उसमें फिर आप यू आर राइटिंग ए थ्योरी क्वेश्चन, जिसमें आप MIS के थ्योरी सॉल्व कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपको हर समय न्यूमेरिकल चूज करने पड़ेंगे, और अब न्यूमेरिकल बहुत इजी भी है, इतने डिफिकल्ट नहीं है, बट तो वही ये बात है। तो मैंने सर उसके लिए लेविन रूबिन पढ़ा था, पूरा बेस वो बनाया था, तो वहां से आई डिड ईच एंड एवरी टॉपिक एंड आई प्रिपेयर्ड माय नोट्स, एंड बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो टू सॉल्व। काफी इजी मॉड्यूल है सर, अगर आप बहुत, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। I will, a word of caution from me to my fellow candidates, when you go in the exam, even a simpler question becomes very difficult, क्योंकि आपको कैलकुलेटर लेना होता है, यू कैन हैव ए फैट फिंगर इशू, आपका 2 की जगह आपने 3 प्रेस कर दिया, प्लस करना होता है, बहुत कैलकुलेशन करने होते हैं, यू आर वेरी नर्वस हाउ टू कंप्लीट द टाइम, सॉल्विंग समथिंग बिकम्स 3 टाइम्स मोर डिफिकल्ट इन एग्जाम। तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाए उससे, कि कैसे करना है, क्या सॉल्व करना है, पी टेस्ट क्या होता है, और काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूले भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। आई यूज टू गेट इन 2 माइंड्स for the simpler things which are very normal, but everything comes with practice, रिवीजन प्रैक्टिस right? रिवीजन एंड प्रैक्टिस, एंड और स्टैटिस्टिक्स में आप जितना ज्यादा कैलकुलेटर के साथ आप यूज टू हो जाएंगे, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। यू विल नॉट गेट नर्वस, बिकॉज आपको टाइम भी नहीं मिलेगा अपने कैलकुलेशंस को रिवाइज करने का, चेक करने का कि हैव यू डन एनीथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर वो रॉन्ग हो गया तो दे कैन पेनलाइज यू अ लॉट। आई डोंट थिंक दे इवन गिव यू एनी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स आउट ऑफ इट। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक आप सभी बहुत अच्छे से करें, और यू हैव टू जेन्युइनली पिक। तो क्या होता है सर, आजकल एक और नया ऑब्जर्वेशन पाया है कि सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, लास्ट ईयर देयर वर थ्योरी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल से, लाइक व्हाट आर द एप्लीकेशंस, इन व्हाट वे, यस। तो आई डिड नॉट प्रिपेयर दोस वेल। थ्योरी पार्ट अब पूछना शुरू कर दिया उन्होंने क्वेश्चन 1 में और क्वेश्चन 5 में। हाँ यस, कंपलसरी क्वेश्चन में, कंपलसरी क्वेश्चन में, तो वो उस टाइम पेपर देख के अपने को लगता है ये व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, बट देन यू रियलाइज कि यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। पहले सर ऐसा होता था कि उससे क्वेश्चंस आते थे, प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आएगा कंपलसरी में, एंड देन वन स्मॉल क्वेश्चन विल कम। बट नाउ आई वुड रिक्वेस्ट अगेन टू एवरीबडी, आप जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ रहे हो, उनका थ्योरी क्या क्वेश्चन हो सकता है वो भी आप प्रिपेयर करें। तो यू हैव टू प्रिपेयर द थ्योरी पार्ट ऑफ इट, प्लीज डू नॉट लीव इट, क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगी। यू इफ यू राइट जेनरिक आंसर, यू नो दैट यू आर फूलिंग समबडी बाय राइटिंग जेनरिक आंसर, तो आपके नंबर भी थोड़े जेनरिक ही आने वाले हैं। इट इज ए क्लियर 1-to-1 रिलेशनशिप देयर। तो सर क्वांटिटेटिव टेक्निक में लेविन रूबिन से कर लिया था। डू नॉट लीव एनीथिंग, ग्राफिकल सॉल्यूशन, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सब कुछ। देन सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इट इज स्लाइटली लॉन्ग, लेकिन कैन कंफ्यूज पीपल, लेकिन सर ये भी काफी अच्छा मॉड्यूल है। मैंने स्टीवनसन पढ़ा था इसके लिए, थोड़ा इसमें आपको समझने में टाइम लगता है, लेकिन बट इट इज फेयरली सिंपल एंड वेरी कॉमन सेंसिकल। यस, या एग्जैक्टली, इट फ्लोज एवरीथिंग कि आप टॉप लेवल से प्लानिंग करेंगे, देन फैसिलिटी लेआउट क्या होगा, उसके मल्टीपल है, लाइन बैलेंसिंग आप क्यों कर रहे हैं, एंड प्रिपेयर फॉर डिफरेंट न्यूमेरिकल। इसमें भी काफी वो जॉनसन रूल के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कुछ भी न्यूमेरिकल आएंगे। CPM PERT शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग।
तो आप इसमें भी बहुत अच्छे से आप रिवाइज करें और रिटेल मैनेज मतलब आप वेस्ट मैनेजमेंट भी क्वेश्चन आ जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं। तो सर इन द एंड व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट को आप उसके न्यूमेरिकल को डू नॉट लीव इट सेपरेटली, आप बहुत ही अच्छे से करें और कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ के मत जाएं कि ये मैं छोड़ के चला जाता हूँ, वही आएगा। तो आप थ्योरी भी इसके अच्छे से प्रिपेयर करें और कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर पाएंगे उसको, लेकिन इसको भी सॉल्व करना है, क्योंकि क्या होता है अगर आप देखिए सेक्शन ए से आपको 3 क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, सेक्शन ए एंड 2 फ्रॉम सेक्शन बी, गिवन दैट उसमें न्यूमेरिकल हो एंड आपको न्यूमेरिकल आ रहे हैं अच्छे से। दैट इज हाउ यू स्कोर 150 इन पेपर 2 आल्सो, टू आंसर द न्यूमेरिकल, और उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। तो सर वो प्रोडक्शन ऑपरेशंस का हो गया, एंड देन आई विल बी क्विक विद एमआईएस। एमआईएस इज सर आई थिंक आई डिड फ्रॉम पीवाईक्यू मोर, I did not do much of going to standard book, and I read through your notes, डायनामिक के मैंने नोट्स फॉलो किए हैं, एंड जो और ये भी काफी फेयरली सिंपल है, वो डिसीजन डीएसएस के क्वेश्चंस आते हैं, ईआरपी आ रहा है बार बार। यहाँ इसमें आप सिंपल सिलेबस करके चले जाइए, सारे सिलेबस के कीवर्ड्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एज इट इज, फीचर्स, सिग्निफिकेंस। यस जी सर, गाइस प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम इधर उधर पढ़ने का, आप पूरा सिलेबस पढ़ें, एक्सपर्ट सिस्टम पे क्वेश्चन आ रहा है, फेयरली सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसी को आप पूरा करके जाएं और बहुत आसान है, हो जाएगा वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेक्शन बी, सर दिस इज आल्सो आई रियलाइज कि सेक्शन बी इन पेपर 2 इज समथिंग जो हम लोग हौच पौच में थोड़ा जल्दीबाजी में कर देते हैं कि ये जीएस 3 से थोड़ा रिलेटेड है, इकोनॉमी से है, एंड देन इन द एंड वी गो आंसर इट बट इन ए जेनरिक वे। लेकिन अगर आप अच्छे से करके जाएंगे बहुत ही इजी है, अच्छे से और बहुत रिपीटेटिव है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है। मींस जीबीआई तो आई थिंक दे हैव ओनली 5-6 क्वेश्चंस, वो पीडीएस, प्राइवेटाइजेशन, वो उसी को बार-बार रिपीट करते रहते हैं, रोल ऑफ स्टेट, करेक्ट, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ रूल प्रोटेक्शन। करेक्ट सर। तो उसके लिए आप, मैं वही बोल रहा हूँ कि सर मैंने क्या गलती कर दी थी, पहले मैं सब कुछ थ्योरी पेपर 1 में इतना टाइम लगा दिया, पेपर 2 में टाइम लगा दिया, और लास्ट में सेक्शन बी में आते वक्त मैं हौच पौच, मैंने एग्जाम से 15-20 दिन पहले नोट्स बना लिए और मैं करके चला गया कि इसको जीएस 3 के नॉलेज बेस से आंसर कर देंगे, बट दैट डज नॉट फुल्ली सर्व योर पर्पस ऑफ स्कोरिंग वेरी हाईली। तो आप फेयरली सिंपल है, आप जो अपने टॉपिक है उनके बस नोट्स बना लीजिए, पीवाईक्यू देख लीजिए और हो जाएगा, नथिंग नोट्स। इस बार सागर आपको याद होगा, आई शेयर्ड सम नोट्स ऑफ जीबीआई विद यू बिफोर द मेंस। Did you use them? Yes sir, 100% I did. Very useful sir, very useful. Okay, I just wondered because I have also compiled those notes from multiple sources. In fact, Consumer Protection Act के तो questions they are asking from NCERT. जी जी जी। I found कि वो सारे NCERT में questions दिए हुए हैं, वो वहीं से पूछ रहे हैं वो. They're asking the comparison of this act with previous act and the features of Consumer Protection Act. जो भी dimension पूछ रहे हैं NCERT से पूछ रहे हैं. जी सर, जी सर, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस आपको थोड़ा उसमें बी स्मार्ट अबाउट इट एंड डू नॉट लीव इट एंड डू नॉट ओवर यूज इट ऑल्सो, डू नॉट ओवर स्पेंड टाइम ऑल्सो ऑन इट। फिर सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगेन वेरी सिंपल मॉड्यूल एंड बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है वो। आपके मैंने आपके उसमें नोट्स पढ़े थे, एंड देन आई हैड गॉन थ्रू जो सारे अपने स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बीसीजी मॉडल है, मैकिंजी 7S स्ट्रेटेजी है, उसके पंकज यादव सर के नोट्स हैं थोड़े, वहाँ से मैंने देखे, और फिर मैंने भावे वर्मा सर के एक्स नोट्स देखे पुराने, उनके देखे। तो उसमें आपको जरूरी रहता है कि व्हाट कंटेंट आर यू कवरिंग, और आप सारा आप बी फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स जो आपके सिलेबस में है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा कि क्या है, और उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा एग्जाम में। तो कोई थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मे बी आ जाएगा कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है, हाउ डू यू यूज इट, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन अप्लाइंग देम, एंड इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी फन मॉड्यूल। आई थिंक दिस इज द मॉड्यूल व्हिच आई लव द मोस्ट इन द एंटायर प्रिपरेशन मे बी। और तो सर ये भी काफी अच्छा है, आपके मैंने नोट्स इसमें किए थे, और सर इसमें एक टिप ये रहता है कि यू हैव टू कोड द थिंकर्स एंड कोड द मैनेजमेंट गुरुज, जैसे रिवर्स इनोवेशन का कॉन्सेप्ट है, एल्फ्रेड चैंडलर, गैरी हेमेल, ये सबको आपको बहुत लिबर्टी में आप प्लीज यूज देम सो दैट द अदर गाय नोज कि यू आर नॉट राइटिंग जेनरिक आंसर, यू हैव रियली पुट इन एफर्ट एंड यू नो देम बाय टिप ऑफ योर टंग। तो वो आपको कन्विंस करना पड़ेगा सामने वाले को। तो राइट सागर, I got your point. I will intervene a bit actually. Like you have been using basic sources, then you used academic resources, then you used some Topaz notes. So just to get the context right,
बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग बिगिनर्स भी हो सकते हैं जो सेशन को सुन रहे होंगे, सो दे मे फाइंड इट कि यार इतना कौन करेगा, कैसे होगा. तो जस्ट वन पॉइंट आई वांटेड टू लाइक हाईलाइट हियर कि ये चीजें जब आप अटेम्प्ट देते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, तब जाके हो पाती हैं. लाइक बिगिनर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सारी चीजें कर लूंगा, वो नीड बेस्ड हो जाती हैं. आई जस्ट वांट योर थॉट्स कि वो कैसे हुआ, मतलब कि इतनी सारी चीजें आपने क्या एक अटेम्प्ट में कर ली थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ चीजें? करेक्ट सर, 100% वेरी वेल सेड एंड वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो. सर फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने बताया था कि मैंने सर जो स्टैंड वही करी थी और वो मैंने डेप्थ में करी थी. तो मैंने लेकिन इतने अच्छे से फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में वो स्टडी, तो आई नेवर हैड टू गो देम थर्ड फोर्थ टाइम एज वेल. तो आई हैड लॉट ऑफ फ्री टाइम टू डू, क्योंकि मैं वही नोट्स बार बार पढ़ रहा हूँ. मैंने काफी अच्छे से नोट्स बना भी लिए थे. तो इन माय थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट देन आई वुड गो फॉर वैल्यू एडिशन एंड देन आई वुड गो फॉर कि बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी बाकी कैंडिडेट्स ने क्या लिखा है. तो बिकॉज सर आपने अपना ग्राउंड वर्क थोड़ा इतनी ज्यादा अच्छे से किया हुआ है, तो यू गेट टाइम ऑल्सो आफ्टरवर्ड. बाकी ये सब उधर उधर हाथ पैर मारने के. बट अदरवाइज माई ओनली पीस ऑफ एडवाइस व्हाट यू आर सेइंग, प्लीज कीप प्रिपरेशन वेरी सिंपल. आप इतने मल्टीपल सोर्सेज मत पढ़ें, क्योंकि बाकी जो टॉपर जो कर रहे हैं वो लिखे, वो दे आर ऑल्सो डूइंग द 90% सिमिलर थिंग एंड 10% वो आपका अपना इंडिविजुअल रहेगा. और सर का हाँ, मतलब यहाँ पर जस्ट मैं पूछना चाहूंगा कि कैन एनी पर्सन रिलाई डायरेक्टली ऑन द टॉपर्स नोट्स? 100% not, sir. You can never rely. It is only 5% of your preparation, maybe in the later end also. राइट, वेरी अप्रोप्रिएट. मतलब पहले आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. या तो आपने सेल्फ स्टडी की है अच्छे बुक से, या तो आपने क्लासेस अटेंड किए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. फिर आप जाके देख सकते हैं कि कुछ मिसिंग है. आपको लगता है कि यार ये पॉइंट भी, मतलब एक डायमेंशन आपका ओपन अप होगा, एज ए रेफरेंस आप देख सकते हैं. बट सम स्टूडेंट माइट बी फीलिंग कि सर ऐसे करते हैं, टॉपर्स के नोट्स पढ़ लेते हैं, उन्होंने तो सब कुछ किया ही है. बट उनके पीछे जो उन्होंने एफर्ट डाला है, जो उनके कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, दैट इज समथिंग विच यू ऑल्सो हैव टू डू जी सर. योरसेल्फ. हाँ. जी सर, 100% सर. उसका थॉट, इफ समबडी इज थिंकिंग कि मैं टॉपर के 20 पेज के नोट्स पढ़ लेता हूँ या 70 पेज में मार्केटिंग कोटलर पढ़ के हो जाएगा काम क्रिस्प में, आपको कभी यू विल नेवर गेट दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड विजन ऑफ माइंड कि आपको मार्केटिंग में हो क्या रहा है. क्योंकि ये कॉलेज का क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्ट आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है. वो दे विल आस्क यू इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट and you will not be able to link it directly unless you have done the grunt work and you have gone through the depth of it. और जो कि आपके अपने नोट से या फिर सर के गाइडेंस से और उनके स्टडी मटेरियल से आएगा. तो वही सर, प्लीज डू नॉट फॉल इन द ट्रैप एनीबडी की थिंकिंग कि वो नोट से हो जाएगा. फर्स्ट आप अपने नोट्स बनाएं, आप अपना डेप्थ में जाएं, आप उसको 10 बार रिवाइज करें. Then if you still have time after 10th revision, then please look what others are doing by seeing the topper answer. Yes, and then only you will be able to pick up those things which you missed out in the initial phase. Exactly. अगर आप डायरेक्टली जाएंगे, you will try to mug up, तो फिर वो मार्क्स gone, because वो आपके आंसर में दिखेगा ही नहीं कुछ भी. जी जी जी, अनफॉर्चुनेटली करेक्ट सर. आपको उस टाइम काफी अटेम्प्ट लग जाएंगे. तो हाँ. अगर आप पहले ही चले जाएंगे तो प्लीज डू नॉट कमिट द मिस्टेक वेयर यू वुड हैव टू. इट इज अ मिस्टेक इन जनरल. राइट, मतलब क्योंकि ना ये आजकल टॉपर्स नोट्स सब जगह अवेलेबल हो जाते हैं, और टॉपर्स का देने का पर्पस ये होता है कि दे जस्ट वांट टू हेल्प इट आउट कि चलो ठीक है आप कुछ हमारे नोट्स में से यूज कर लेना. बट व्हाट बिगिनर्स थिंक इज कि यार सारे नोट्स टॉपर्स वाले कर ही लेते हैं, उन्होंने मेहनत कर ही ली है, बट वो कभी कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा उनको. उनको कभी सब्जेक्ट से प्यार ही नहीं हो पाएंगे. जैसे आपने बोला कि सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना और कॉन्टेक्स्ट को समझना, आप जैसे बता रहे हो कि सारे मॉड्यूल आपको सिंपलर लगे. आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज कि आपने उसमें इंटरेस्ट लेके सब्जेक्ट में स्टडी की है आपने. जी सर. जी जी जी, यू आर 100% राइट सर. तो आई थिंक आई कैन नॉट स्ट्रेस एनी मोर कि आप अपना कर लें, 10 रिवीजन करें, उसके बाद आपको 2% 5% अगर एवेल्युएट करना है तो आप जाएं. बट अदरवाइज इफ यू डोंट हैव टाइम, प्लीज स्टिक टू योर बेसिक्स एंड बेसिक्स ओनली विल लीड यू वेयरएवर लाइफ हैज टू टेक यू. I think you will be smart enough to pick up those things at that time. जब आपका एक बार हो जाएगा, मान लिया आपने एक बार मेंस दे दिया, सपोज आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आप उस समय you get that intelligence कि कैसे चीजों को पिकअप करना है. उस समय वो समझ में आ जाती हैं चीजें. हाँ. करेक्ट, क्योंकि आप सेकंड अटेम्प्ट में और अगर व्हेन यू आर गोइंग बैक टू योर नोट्स, आप सेम चीज वापस उतना टाइम नहीं लगेगा आपको. आपने स्टीवन रॉबिन्स के नोट्स बना लिए हैं 30 घंटा लगा के और खुद से अभी हो चुके हैं, तो probably in the subsequent years you will take only 5 hours or 10 hours to do that, and then later on you can have 2-3 hours extra to do all the other things that you want to do. लेकिन आप शुरू में वो नहीं कर सकते हैं.
तो सर वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया एंड देन आईबी इज आल्सो सर फेयरली सिंपल। वहाँ वो भी सर एनसीईआरटी का एक दो चैप्टर्स है वहां से पढ़े, बट इट इज मोर ऑफ पीवाईक्यू एंड गोइंग थ्रू ईच टॉपिक एंड आंसरिंग देम। इसमें सर पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू गो थ्रू पीवाईक्यू। और आईबी सर डेटा फैक्ट्स कुछ, हाँ, लाइक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का लेटेस्ट डेटा, 100% सर यू आर राइट। एफडीआई, राइट। जी सर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको करके जाना पड़ेगा। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन दैट दे ऑलवेज आस्क, कीप ऑन आस्किंग। नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगा तो दे विल आस्क यू व्हाट आर द स्कीम्स दैट दे हैव कम आउट विद। देन द अदर थिंग आल्सो दे आस्क इज कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या रहता है, व्हाट आर कमर्शियल बिल ऑफ लीडिंग। बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, मतलब ना कि यू विल एंजॉय, एक बार पढ़ लिया तो हो गया। करेक्ट, एग्जैक्टली सर। आपने अगर एक बार मेहनत करके नोट्स बना लिए, वेरी स्टैटिक। राइट। जी सर। तो सर इसमें बुक्स, बट अगेन सर पीवाईक्यू मैंने बीच बीच में बस इंसर्ट किया था, हाउ टू प्लग इन द पीवाईक्यू। बट पीवाईक्यू इज द की। जैसे आप भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली माय एक्सपीरियंस इज ऑफ द फेल्ड अटेम्प्ट्स एंड द सक्सेसफुल अटेम्प्ट दैट आई हैव हैड, एंड आपका एक्सपीरियंस इज ऑफ द कोचिंग एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू हैव सीन एंड अंडरस्टूड अबाउट इट, एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट पीवाईक्यू। लेकिन सर वो मैंने भी आई लर्न इट ऑल्सो दी हार्ड वे। बट पीवाईक्यू से ही पूरा मटेरियल डिकोड होगा, उसके आपके टॉपिक डिकोड होंगे, सब कुछ डिकोड होगा। तो पीवाईक्यू आप प्लीज, माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी हु आर राइटिंग मेंस एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर और कमिंग ईयर्स, आप कोई भी मॉडल पढ़े, प्लीज स्पेंड टाइम ऑन पीवाईक्यू। आप अगर सॉल्व ना भी करें तो भी जस्ट फ्लिप द पेजेस ऑफ द पीवाईक्यू टू सी कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो दैट यू आर वेरी वेल अवेयर कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन ही क्या आ रहे हैं उससे। You cannot blindly just इनफैक्ट read आप स्टडी स्टार्ट करने से पहले पीवाईक्यू देखें। हमने तो चैप्टर एंड पे दिए हुए हैं सारे स्टडी मटेरियल में, और इनफैक्ट अभी हम 5 साल के सॉल्यूशंस भी अभी रिलीज होने वाले हैं वेरी सुन। तो मतलब पीवाईक्यूज, आपने बिल्कुल सही बोला कि पीवाईक्यूज इज द एक्चुअली की, कि आपको करना क्या है। बिकॉज आपने अगर कोई सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ है अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वहां पर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज पूछ रहे हैं, वो यहाँ पर कौन सा एरिया और किस तरह से पूछ रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम पीवाईक्यू। अच्छा, कितने साल के पीवाईक्यू चाहिए आपको सागर? आपको लगता है कि 5 साल, 10 साल? और फिर मतलब पीवाईक्यूज को रेफर करना, लेकिन उसमें क्या क्या चीज देखनी है, क्या क्या ऑब्जर्व करना है, मतलब माइक्रो लेवल पे थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? करेक्ट सर। सर पीवाईक्यू ऑनेस्टली मैंने प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2020 और 2021 दिया था। तो मेरे को अभी मैं अगर इस साल का 5 साल का लूंगा तो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड। तो वो 5 साल वाज पीवाई वो नॉर्मल थे मेरे लिए। तो आई बेसिकली स्टार्टेड विद 2016 एंड उससे पहले भी। ऑनेस्टली सर आई स्टार्टेड विद 2013। मैंने जब से नया पैटर्न आया है राइट। वहां से मैंने स्टार्ट किया पूरा देखना, एंड आई फिगर्ड आउट कि 80% रिपीट हो रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा ओबी से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो रिपीट होते हैं। 2014 के क्वेश्चन 2019 में पूछ लिया, 21 का क्वेश्चन 25 में पूछ लिया। तो आप एंड लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस, 10 ईयर को आप बेस बनाए, लेकिन लास्ट 7-8 तो 100% करना ही करना है। प्रोबेबली बिकॉज लास्ट उसके 13, 14, 15 को आप थोड़ा कर्सरी लुक दे सकते हैं थोड़ा, लेकिन लास्ट 7-8 को आपको एकदम गॉस्पेल ट्रूथ की तरह, बाइबल की तरह प्लीज सॉल्व करें उसको, बहुत अच्छे से जाए 7-8 ईयर्स पे तो आप एटलीस्ट। और उसको सॉल्व करने का सर तरीका भी वही है कि आप जो मॉड्यूल अभी आप रिवाइज कर रहे हैं, आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट का आप खोल के पढ़ें। 10 साल का पेपर आप बार बार खोल के देखें कि चलो मार्केटिंग का ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। आप वो खुद भी अपनी मेहनत करें। आई विल अर्ज एनी स्टूडेंट नॉट टू गो थ्रू एनी अदर, मतलब कि प्रिपेयर मटेरियल कह रहे हो, किसी ने बता दिया कि चलो ये सभी क्वेश्चन आते हैं, आप खुद भी अपने से अगर 50 बार पेज को फ्लिप करेंगे पीवाईक्यू का, इट विल रादर हेल्प यू अ लॉट आल्सो। हाँ, मतलब मैं तो कहूंगा कि आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिल भी जाए तब भी आप ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करो और देखो, बार बार देखो, क्योंकि वहां से जो आपकी फीलिंग डेवलप होती है ना, इनफैक्ट यू आर वेरी राइट सागर। जब मैं भी पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो मैं कितनी भी बार भी लेक्चर रिपीट कर लूं, बट आई विल ऑलवेज सी लास्ट 3 इयर्स अगेन एंड अगेन, जी कि जी जी पल्स चेक करना चाहता हूँ मैं एग्जामिनर की, एग्जामिनर कहाँ पर चल रहा है इस समय। क्योंकि कई जी बार हमें लगता है, जैसे आपने बोला, कोई टॉपिक हमें लगता है कि यार तो नहीं आएगा, बहुत समय से नहीं आया, और वही आ गया। और फिर लैंग्वेज एग्जैक्टली वो किस तरह से डायरेक्शन में पूछ रहा है, जैसे कभी बहुत बहुत ही सिंपल पूछ लेता है, कभी थोड़ा जी कॉम्प्लेक्स भी बना देता है कुछ कुछ एरियाज को। तो लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू तो आप ओरिजिनल वाले डाउनलोड करो, उसको बार बार देखो, मतलब वहीं से आपको ना वो फीलिंग डेवलप होगी एग्जाम वाली एकदम पूरी। जी सर। जी जी करेक्ट सर। मैं एग्जैक्टली आप यूपीएससी वेबसाइट पे जाएं, कहीं से जाएं, वो पेपर डाउनलोड करें, और आप पीवाईक्यू हर समय, एवरी इफ यू आर स्टडिंग एनीथिंग टुडे, उसी का पीवाईक्यू भी देखें। you cannot have a day gone by where you have not gone through the PYQ. It is very idealistic to say, but please, if anybody does it, it rather helps a lot.
क्योंकि लास्ट में आपको वही काम आता है पीवाईक्यू। और इस एग्जामिनर सब्जेक्ट भी तो जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है ना वो पीवाईक्यू देख के बना रहा है, क्योंकि जो हर साल का एग्जाम तो सेम तो होता नहीं है, पीपल चेंज, प्रोफेसर चेंज, तो व्हाट रेफरेंस दे हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली। जी सर, जी सर, फाइनल वही है सर, मतलब आइदर वी कैन अर्न 280 इन अ वेरी हार्ड वे और इन अ वेरी स्मार्ट वे, एंड अर्निंग 280 इज फेयरली सिंपल इन आवर मैनेजमेंट ऑप्शनल इन अ वेरी स्मार्ट वे वेयर वी इंटीग्रेट पीवाईक्यू क्लोजली विद आवर सब्जेक्ट सर। तो वही है, तो फाइन पीवाईक्यू फाइन। सर काफी इंपॉर्टेंट है सर। आंसर राइटिंग के लिए क्या बताएंगे आप? जी सर, सर आंसर राइटिंग में मैं क्वेश्चंस तो आपको समझना पड़ेगा कि वो वुड गिव इन द इंट्रोडक्शन, आई वुड प्रोबेबली इंट्रोड्यूस द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक, या फिर द डेफिनेशनल एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, या फिर किसी पीटर ड्रकर ने कुछ बोला है उसके बारे में, या फिर आई जैक वेल्च का किसी का मेरे को पता है, या फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो मैं देता था। फिर देन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, व्हाट इज इट दैट दे हैव आस्क्ड। अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल पूछा है, मैनेजमेंट थ्योरी पूछा है, तो आपको उनके 5-6 क्या प्रिंसिपल हैं एग्जैक्टली, वो 14 प्रिंसिपल्स भी क्या है, फेयर टेलर के, वो सब आपको लिखने पड़ेंगे अच्छे से। तो एड्रेस द कंटेंट, एंड देन यू हैव टू गिव द एप्लीकेशन आल्सो ऑफ इट, कि आपको ये किस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो रहा है। जैसे गूगल का कुछ पॉलिसी आ गया तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिमेंशन में खोलें, फिर एक प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट में डाल दें, या फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यूएस कॉन्टेक्स्ट में, एंड वी हैव टू गिव मल्टीपल एग्जांपल्स एंड मल्टीपल डायमेंशन टू इट, कैन नॉट बी वेरी प्लेन वनीला थ्योरेटिकल आंसर। आपको उसमें यू हैव टू बी स्मार्ट एंड मेक इट थोड़ा एक्साइटिंग फॉर हिम आल्सो टू रीड। तो आप एग्जांपल दे, ये सब सर तभी आता है जब आपने वैल्यू एडिशन किया है, आपने थ्योरी बनाते वक्त एग्जांपल भी पढ़े हैं, उनको थोड़ा उसके बारे में सोचा है कि इसमें, जब आपने पीवाईक्यू देखे हैं और उनको थोड़ा अटेम्प्ट किया है, सॉल्व किया है, तभी आपसे वो फाइनल आंसर भी रिफाइंड निकलेगा इन द एग्जाम, अदरवाइज इट विल बी वेरी थ्योरेटिकल आंसर। तो सर मेरा आंसर राइटिंग वाज ए प्रैक्टिस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ हाउ आई विल डू पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू कर करते मैंने थोड़ा अपना रिफाइन किया आंसर राइटिंग स्किल। लेकिन सर इट इज नॉट ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड आर्ट, आप जीएस के लिए भी कर रहे हैं, बाकी के लिए कर रहे हैं, प्लीज एड्रेस द कंटेंट ऑफ द टॉपिक, और आपका वैल्यू एडिशन आप हर जगह डालें, और अच्छे अच्छे डायमेंशन डालें, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में डालें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डालें, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में डालें, ग्लोबल कुछ हुआ है उसमें कुछ नया हैपनिंग है, प्लस कभी क्लटर व्लटर, द वे यू प्रेजेंट एन आंसर आल्सो मैटर्स अ लॉट, क्योंकि इसमें काफी वर्बोस हो जाएगा अगर आप एकदम थ्योरी थ्योरी लाइन लाइन लिखते जाएंगे। तो आप क्योंकि नेटवर्क बनाए, नेटवर्क और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आया है, तो उसमें आप कुछ चार्ट बनाए, कुछ फ्लो बनाए, और उससे आपका एक तो स्पेस भी फिल अप होएगा, जिससे यू विल हैव टू राइट स्लाइटली लेसर एंड यू विल आल्सो लुक स्मार्टर। तो यू हैव टू प्ले विद दोज वीडियो चार्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, आल्सो फ्लो चार्ट, व्हाट यू कैन डू ओवर तो देयर। वैल्यू एडिशन में आपने बताया करंट कॉन्टेक्स्ट, आपने थिंकर के नाम बताए, फिर एग्जांपल्स, मल्टीपल डायमेंशंस, डायग्राम्स। जी सर। अच्छा ये बताइए कि जो करंट अफेयर्स के लिए डिड यू यूज एनी न्यूज़पेपर स्पेशली फॉर मैनेजमेंट? आपने कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिसर्च किया था, या इट वाज लाइक यू केप्ट योर माइंड ओपन इन द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जो आप जीएस के लिए पढ़ रहे थे? लाइक हाउ डिड यू गो अबाउट इट? डिड यू डू एनी स्पेसिफिक रिसर्च? सर मैंने करंट कॉन्टेक्स्ट के लिए इतना वेरी इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट तो उसके लिए थोड़ा अलग किया, और नॉन वेरी इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के लिए जो भी मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे उनको मैंने आंसर किया था 1-2 साल के एग्जांपल से। तो वो उससे मैं, क्योंकि मैंने इतने सारे पीवाईक्यू थोड़े किए थे, तो वहां से वो आंसर्स एग्जांपल्स क्विकली आ जाते थे मेन आंसर राइटिंग में भी। तो आपको आगे, और जो इमीडिएट के लिए है सर, मैंने जीएस 3 का अपना जो इकोनॉमिक्स के लिए अपन पढ़ते हैं, तो वहां से जो वो काफी करंट अफेयर आप उतना प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा सर न्यूज़पेपर और ये सब भी फॉलो करना रहता था सर। तो राइट, सर इट्स मतलब वेरी न्यूज़पेपर इजी। आप जो जीएस के लिए यूज कर रहे हैं वही? जी जी सर, मैंने इंटरव्यू के लिए बिजनेस पेपर और वो सब मिंट पे गया था, वो इकोनॉमिक टाइम्स पे गया था, बट हाँ, नॉट सो मच। इंटरव्यू के लिए, बट नॉट फॉर मेंस ना? सर नो सर, मतलब मे बी नॉट सर। हाँ, फाइन 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 सागर। नाउ लास्ट अबाउट इंटरव्यू, जो इंटरव्यू में आपके ऑप्शनल का कुछ रोल था? डिड यू फाइंड एनीथिंग? Sir, I think my interview both the times, sir, they were very much based on my experience of an MBA and an investment banker, and also because my management. They did not ask me, matlab, it was solely because of my management optional and whatever my background was as an MBA. So everything was there. They did not ask me anything कि GS related, या फिर आपको कुछ भी नॉर्मल आर्ट्स से रिलेटेड कोई ह्यूमैनिटी के क्वेश्चन नहीं थे अपने। तो लाइक
one of the first question that was asked to me this year was, now that sir, my interview was on 19th February. On the date itself, the news of Tesla coming in into Indian market with their EV model had come out. So the first question started with the chairman asking about, you have 1 year as a forecast period, so envisage how Indian EV industry would evolve now that Tesla has come into the market. What will be the competitive dynamic, landscaping, the pricing point, how will the industry evolve? That is how he started. Okay, Yeah, I sir. remember you told me. Right, sir. Hmm. So from there, then we went to discuss about capitalism or the growth of international financial market. How does it get integrated? Then we talked about stock market ka wise there is a lot of fluctuation lately in February, January. So, sir, I would say management as an optional, sir, or my background. Largely, मतलब it was wonderful. मतलब कि आपका जो background है plus your optional, it was the base actually. जी sir, Fine. जी. Wonderful, Because sir, wonderful. right sir, and I also feel unless you are confident about your optional and your work experience and whatever your core background is, आप interview में कभी भी you can never open up. Interview is all about expressing yourself in a very confident and delicate and a very smart way where everybody loves to want to talk to you and they want to see the integrity and they want to see whether how much this guy knows and how confident he is also about everything. Right. And sir, for that, right, sir. As I was saying, I would do mint paper ka business study for those during those period a lot, maybe, sir. Fine, 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 Sagar. Sagar, now last, let me see some questions. One question has come. How is the management optional for MBA candidates? क्या MBA candidates के लिए जो MBA कर चुके हैं उनके लिए management optional ठीक है? I think you have answered it enough, but still I would ask for your words again. Right, sir. Sir, I'm a live example of somebody who has done MBA and done the subject. But also equally, there are many people I know who are in MBA from good colleges, IIM Bangalore and many others, but who have not taken MBA management as an optional. Uh, the question is twofold. One is, will MBA help you in understanding management optional? Will it come more easily? The answer is 100% yes. Your everything will flow very naturally because you have done MBA, and even if it is, let's say, 2-3 साल अगर आपको हो भी गए MBA करते हुए, because you worked also, फिर भी आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इट विल फ्लो इन नेचुरली बिकॉज मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी बहुत आसान है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे को लगता है कंसेप्चुअली. तो MBA helps in management optional 100%. Now the thing is, why do people not go for a management optional then? It is, तो उसका सबका पर्सनल चॉइस है. somebody want to get into known territory where they feel anthropology or any other optional have more guidance and more, it's a more a known territory, they can maybe do better. It is all a call eventually that you have to take. But I feel the same score with equal amount of effort is available in both the courses. तो आप अपना कॉल लें कि आपको क्या करना है. Right. One more question has come, Sagar. One person has done the graduation. How much time will it take to cover all the subject? Is 6 months enough for completion of the syllabus of the optional? Look, beginners के point of view से you can understand. This is the first question कि कितना time लगेगा? जी sir. Sir, I can answer as an aspirant, but also, sir, you have more experience as a teacher. Where No, you are, I want your words. I mean, definitely the question is very general, very right, sir. commonsensical. So, how would you answer? Sir, it's a very pertinent question also, क्योंकि अगर आपने अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी है, अगर आपने लेट्स से दिस इज द मंथ ऑफ मई और जून एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर जिसमें प्रीलिम्स आपका मई में होगा, तो इट विल टेक यू एटलीस्ट 5-6 मंथ्स या फिर उससे आपको कम भी लग सकता है, बट जेन्युइनली 3-4 मंथ्स तो लगना ही लगना है आपका अगर आप अच्छे से करेंगे, बेस में करेंगे, बिकॉज there will be other GS also going on and you cannot just completely do optional for 4-5-6 months. I would सभी का अपना अपना है. I would mix it up with other GS also. I will not get completely lost in one subject. लेकिन आप पहले साल में अगर आप अच्छा सा बेस बनाएंगे तो it really helps a lot
and I would advise anybody not to take a shortcut. Please spend all the time, effort and energy in your first attempt and while creating the notes. तो आपको 4-5 months is a very I will not solely comment on कि कितना लगेगा आपको, but 4-5 months is a reasonable estimate. that depends upon background also कि किसका क्या background है and all. Fine. जी सर, किसी को सर स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा टाइम लग जाता है, किसी को अकाउंटिंग में ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट एवरीबडी इज इक्वली ऑन ओबीडी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजर, मार्केटिंग में सबको इक्वली टाइम लग रहा है, बट Right. आपका डेप्थ कितना है उसमें आपको टाइम लगता है maybe. Right. Now, Sagar, in the last, I would definitely ask about how Didemy IAS, like what role Didemy IAS played in your UPSC journey. Sir, Didemy, I started this interaction with thanking you both in professional, in terms of educational context, and also in our other personal connect network, where you were a guidance and you were a support, where things were not turning out well and where life was kind of hard. You were a shining light and you gave the path. I remember we had a lot of deep conversations. I mean, you first met me before your 2023 interview. Right. Interview on the day of result of the mains of 2023. Yes. Right. So, sir, our synergy and our connect from that time onward, it has been more than 1.5 years, and it has been on both the front, on the educational front, on the management part. I took Didemy study material. As I was saying, I failed my last interview, couldn't make it into the final list. So once that result came out on April 16th last year, from that April 16th till May 25th or 20th, I had almost studied 80% of Didemy study material, because I did not want to do that between pre and mains. So whatever little time I had to improve on management in this attempt, I focused more by taking it from Didemy material. So that way, the value addition, everything in last 1 year is 80% because of Didemy material, honestly. So on educational front, that, and then PYQ, prelims, mains, that I did, which helped me also in this attempt. And the other part was just use general guidance and just you as a teacher, where you showed me the path, and as a mentor, where we discussed many things about how to tackle difficult situations in life. They really help you get a moral compass and be stable in times of where turbulent waters are hitting. It's a pleasure, Sagar. It's a pleasure that you actually use the resources of Didemy, and in fact, we feel very, very happy when someone qualifies from the management optional, and you are the topper of this year management optional, because the scoring 266 is a wonderful score. Because across all the optionals, anyone who is scoring 260 plus is wonderful score. So it really shows your caliber. It really shows your talent, as well as all the hard work that you have done throughout the years. So our blessings are with you, and I think you are going to get your favorite service, IPS. So my best wishes for that. There is one more question which have come. If for some subjects coaching material has been studied, do we need to go to basic books? So ये question है. In fact, I would answer this question, Astha, कि if you have gone through coaching material, after that, if you find that you are lacking in some concept or something, then you can refer. But it is not that you have to do it by default. So it is need based. Especially in the first attempt, I will not recommend you to do anything extra, because you revise this thing again and again. You go through PYQ, write answers. So that is more important, because once you have certain level, then you are able to identify that if I go through some extra book, what exactly I will pick up. As a coaching institute, I will never say that you do my material and that is end of the game, because UPSC mein nothing is ending. GS may be people study so many materials, so many things, but it really comes down to one thing कि पहले आप जो आपके पास में उसको solid तरीके से कर लो. Then only you should start looking for something new, because then only you will understand कि मुझे क्या उसमें से pick up करना है. One more question is there from Aisha Muhammad. Sir, I have a master's in Homeland Security, in which I got to learn few management related subjects like OB, FA, etc. Would you recommend taking this optional, also considering that I am working full time as a consultant? So, masters in Homeland Security. I am not much aware about this
Aisha. Sagar, can you please answer? Did you get this question? Sir, even I am slightly lost in terms of it's a very difficult question to answer. I think it's the most difficult question in our conversation. Uh, I mean, my thing is, sir, if you have gone through the basics, I would urge you to go through the PYQs and maybe look at the syllabus. If you feel the syllabus is something that you have gone through and you are fairly comfortable with what it offers, uh, happy, please go with that. Maybe you can take a call. It's a personal call. But if there is an overlap and you feel confident about it, then maybe why not? Yeah, fair enough. Fair enough. Okay, I think we have taken up all the questions, and thank you everyone who has been attending the session, and we will upload the recording of this discussion on the YouTube as well. If you have missed out some portion, you can be there. And thank you, Sagar, for your time and sharing your experience in detail. It really means for all of us. God bless you. All the very best. Thank you, sir. The pleasure was all mine. I couldn't stress on it more. Thank you. Good night. Thank you.